Hello, Mitaji. How are you? एक 20 मिनट्स पहले आप हाँ. सेंड करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? ओके, Thank you, Mitaji. Thank you for your valuable suggestion. इट्स ओके ओके ओके। आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? फाइन, बहुत अच्छी चल रही है। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कंटिन्यू ओके। कंटिन्यू। पावर बुक में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है उसमें पावर बुक में? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपका क्लास शुरू करने से पहले ही मिनाल मैम का किया था। हम्म। हाँ, इस वजह से थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक से समझ पा रहा हूँ। उसमें तो हम लोग है ना, ऐसे था कि ना पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते थे, जैसे कभी ट्री को हक करते हुए या किसी चीज का, मतलब वो कहती थी करने के लिए, तो पोस्ट करते थे लोग, अच्छा लगता था वो सब भी। हम्म। हमने तो खैर नहीं किया, लेकिन हाँ, बाकी लोग करते थे जरूर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये हाँ, नहीं, कभी यही जैसे बात है फ्लावर से कुछ कि कुछ बनाना, कभी हम्म फ्लावर से कुछ बनाने के लिए, मतलब वो सब चीजें जैसे जैसे आती थी उसमें चैप्टर्स में, उस हम्म। हिसाब से। हाँ। Nice. We ओके। will also encourage all our participants to हाँ। do that. Yeah. ओके। Okay, so thank you so much for your valuable suggestions. And let's start our peak state programming. Peak State Programming. Hello, friends. I welcome you to Peak State Okay, let's Programming. start. This is Awesome SRK. I'm a businessman, author, and a happiness coach. Change your state, change your story. Peak state programming of our subconscious mind shall be practiced daily, morning, or at any time of the day. This practice can be repeated in the day again and again as required. Peak state programming is about being in action. The practice is about programming our subconscious mind with a sense of winning. By doing this practice, we shift our mind into gamma frequency, which is the highest alertness of the mind. While doing this practice, the thought and feelings are important. Think and feel that you are running an Olympic race. Yeah, And so yes, everybody understand it. you are the winner. Thinking and feelings are You very have to think important while in your doing this mind, practice. I am the winner. And keep on repeating this the full day. I am the winner. By regularly practicing, you will feel like a winner and your energy levels will improve. It's about physical action and developing a winning attitude. Do practice this for next 21 days and repeat it as often as possible. This is peak state programming. How to change your mental state instantly. Stand in a running position with the right leg in the front and left ankle raised in a running position. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Yes, Run, come on, faster, everyone. faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, keep running. Fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on. Go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, Yes, very nice, I am very the nice. winner. And you say to yourself, I am the winner. Yes, we all are I'm the the winners winner. I am the winner. in the game of life. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes, come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster, faster. Yes. Yes, yes, yes. Come on. Yes. Okay.
Wonderful, wonderful. Just stop. Yes, Thank I you, am the thank you. winner. And Yes, now we all you say are to the yourself, winners. yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. I am the winner. And now we end, we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I can, I will. I will, I must. I must. I can. I will. I must. Okay, who would like to read today? Today's chapter is again magical. Like up till now, you all must have gained some power when if you are doing a practice regularly. So because of that power, now you can heal other people also. Now you can send your positive energy to other people. जब आपके पास नहीं होती है तो आप किसी को नहीं सेंड कर सकते हो, किसी को हील नहीं कर सकते, पर जब आपके पास भी होती है, आपने इतना कमा लिया है तो आप किसी और को भी दे सकते हो. तो आज की प्रैक्टिस पूरी उसी के बारे में है. Who would like to read? Hatim, would you like to read? Yes, sure, Alifia. Thank you. Oh, thank you, Hatim. Thank you for joining today. Okay, let's read. So yeah, first describe this picture. Anybody wants to describe the picture? There is a chair, some old chair is there, Hmm. and some something related outing. There is a hat, there is a bag, and magical wand. Is it a magical wand? Yes, yes, it's a magic wand. Yes. Okay. Thank you. Yeah, so there is a magic wand and so many magical sparkles coming out. Okay. So yeah, so today's practice is all about using your power, using your energy, using your positive energy and love to heal other people and to give some spark to other people. Like when their spark is, there are times when people are not feeling good, they have some negative feelings or negative things going on in their life. So there are so many different things. So at that time, you can be a spark in somebody else's life. You can be that light. So it is very, very important because we all are here for we all are here with the same energy and same power. But some people are, because of any circumstances, whatever it is, because of that, maybe they are like down in dumps right now. जो भी है उनके साथ अभी जो भी हो रहा होगा लाइफ में, तो आप उनकी लाइफ में कोई स्पार्क बन सकते हो, आप उनकी लाइफ में एक लाइट बन सकते हो, एक आशा की किरण बन सकते हो, उनको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भेज के. जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जहां पे भी आपका अटेंशन जाता है, यू फोकस योर अटेंशन, एनर्जी फ्लोज. तो वहां पे आज हमें एनर्जी को फ्लो करना है जहां पे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. हमारी लाइफ में कोई भी हो सकता है, हमारा कोई रिलेटिव में है या हमारा कोई किसी भी चीज में अगर है, कोई रिलेटिव है या फिर कोई फ्रेंड है जिसको हमारी जरूरत हो सकती है, या ये एक एनर्जी की जरूरत है जो उनके लाइफ में काम आ सके. ओके, सो देखेंगे कैसे करना है. तो या यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. You're on mute, Hatim. Yes, I'm unable to see the screen. Just a minute. Yes, now it is. Okay, no problem. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your hand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you
fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को भी हेल्प जब करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, आपको हाँ लगता है कि काश मैं इसकी कोई मदद कर सकूं, जब ये आप बोलते भी हो तब भी आपके पास इमेंस पावर होता है। पर जब वो पावर को आप ग्रेटिट्यूड के साथ डायरेक्ट करते हो, ऑलरेडी लाइक अपना फेथ भी डालते हो सुप्रीम की तरफ कि हाँ इसका जो भी है, जिनके भी लिए आप आज प्रे करोगे, तो उनके लिए आप पहले से ही एक फेथ भी डाल देते हो कि हाँ इनका होगा। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, मैं तो रोज करती हूँ। और ये प्रैक्टिस यानी आपको पता है कि जो भी आप देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वही बोलता है कि जो भी आप देते हो वही आपके पास वापस आता है। यानी मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वापस आने के लिए आप यहाँ पे ऐसा दे रहे हो, पर यहाँ पे आप अपने एक पावर को आप समझ सकते हो कि हाँ मेरे पास ये पावर है और मेरी पावर की वजह से मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है हमारे लिए। जैसे किसी को हेल्प करनी है हेल्थ के बारे में, तो हम अपना मैजिक वॉन्ड उनके ऊपर कर सकते हैं और उनको आप देखोगे भी कि ऐसा होता भी है कि जैसे ही आप एनर्जी भेजते हो सामने वाले पर्सन को, वैसे तुरंत ही उनकी हेल्थ में फेरफार होने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है और जब कितने सारे लोग मिलके करते हैं, तो जैसे आज हमें अभी पता है कि विनीता जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो लेट्स डू दिस टुडे। हम सब लोग मिलके उनको एक अच्छी एनर्जी भेजते हैं और उनके लिए थोड़ा प्रेयर करते हैं, जैसे जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो आप आज हमें एक्चुअली 3 पर्सन को लेना है, उसमें से 1 पर्सन को हम विनीता जी को ले सकते हैं, जो अभी इतना कुछ हेल्थ के ब्रेकडाउन के थ्रू अभी वो गुजर रहे हैं। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। Energy flows where your attention goes. And when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said, "Thank you," before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy. And coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. जैसे People who wait जीसस for ने a भी magic wand, हाँ पढ़ो। shall I read? Yes, you can read this quote. People who wait for okay. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, personal development coach. तो इन्होंने क्या बोला कि अगर पीपल कोई स्पेशल किसी जादुई चिराग का या जादुई वॉन्ड का जब वो लोग वेट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप खुद ही जादू का वो हो, एक सोर्स हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इतनी शक्तियां है, इतना पावर है, भले आज तक हमें किसी ने बताया नहीं, पर हाँ हमारे अंदर वो पावर्स है। और आज हम सीखेंगे कि वो अगर पावर है तो हम किसी और के लिए भी कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनके तरफ ये एक बड़ा जो हमारा एनर्जी का जो फील्ड होता है, जो हमारी एनर्जी होती है, वो उनको भेज के उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी जो भी अगर फाइनेंशियल कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल जो भी है, उनकी तरफ हम ये एनर्जी को भेज सकते हैं। तो आज हम ग्रुप में ऐसा करेंगे। मैं जैसे हम कैसे लिखते हैं कि कुछ भी चीज हो चुकी है, हम ऐसा लिखते हैं हमारे ड्रीम उसमें। तो आज मैं भी एक एग्जाम्पल लिख के भेज, मतलब एग्जाम्पल नहीं, एक्चुअली विनीता जी के लिए प्रेयर ऐसे लिख के भेजूंगी प्रेजेंट टेंस में। क्या विनीता जी ठीक हो गई है, अच्छे से बातें कर रही है, हंस रही है, खेल रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस में हमें लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके गॉड को। तो आज हम सब ये करेंगे अपने ग्रुप में और विनीता जी को जितनी हो सके इतनी अच्छी एनर्जी भेजेंगे जिसकी वजह से जल्द वो ठीक हो जाए। ओके, सो
Yeah, let's read further. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. या सो आपके पास इनविजिबल फोर्स है जो जो आपके पास ही है, क्योंकि आपने इतना कमाया हुआ है। अभी आप ये जब 23 डेज तक आप जब प्रैक्टिस करते हो, धीरे 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 करको आपको खुद को अंदर से लगता है कि हाँ, कितने सारे मैजिक मेरी खुद की लाइफ में हो रहे हैं। अभी आप सबको लगता होगा कहीं ना कहीं पे स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे मैजिक्स जरूर होते होंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि आप सबको लगता होगा कि हाँ, मेरे पास भी एक पावर है। मैं भी अपने अपने आप के मतलब हमारे पास कोई पावर नहीं है एक्चुअली, बट हाँ, बिकॉज हम सुप्रीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब हम सुप्रीम के अंदर अपना फेथ डालते हैं तब हमारे पास ये पावर आ जाता है। तो ये पावर को हमें डायरेक्ट करना है किसी भी लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पे हम आए ही एक्चुअली इसलिए हैं, हम कुछ ना कुछ सर्व ह्यूमैनिटी को करने आए हैं, इतना समझ लीजिए। अगर धरती पे आने का हमारा कोई पर्पस है तो कुछ ना कुछ वैसा ही है कि हम अपनी कोई क्रिएटिविटी जो हमारे लिए यूनिक है, वो क्रिएटिविटी किसी को हेल्प करने के लिए हम यूज करते हैं। हाँ, उसके साथ आपकी खुद की तो सब कुछ होने ही वाला है। आपके खुद के पास पैसे, आपके खुद के पास जो भी कुछ है, वो तो आएगा ही आएगा। पर आप इस धरती पे क्यों आए हो? कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ह्यूमैनिटी को हेल्प करने, कुछ न कुछ ऐसा ह्यूमैनिटी को देने के लिए। अगर यहाँ पे हम लेजेंड्स की बात करें, चलो एक बॉलीवुड में ही बात कर लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात कर लेते हैं। चलो आज तो ही इज ए हीरोइक पर्सनालिटी, राइट? तो उन्होंने अपनी खुद की एक क्रिएटिविटी थी, जो क्या थी? स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट खेलना। यानी मुझे लगता है कि कोई भी स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़ सकते थे, पर उनको एक जैसे मान लो उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला है कि हाँ, उनको तो किसी भी स्पोर्ट्स में इतना ही इंटरेस्ट था जब बचपन से ही। तो जितना जितना वो प्रैक्टिस क्रिकेट में करते गए, इतना उतना वो आगे बढ़ते गए। आज हम सब लोग उनको लुकअप करते हैं किसी भी चीज के लिए, कि हाँ, कैसे डेडिकेशन के साथ या कैसे प्रैक्टिस के साथ वो उनकी अपनी गेम को आगे 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 और लेते गए। यानी किसी के लिए इंस्पिरेशन है आज। अगर कोई बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते होंगे तो उनके लिए एक वो इंस्पिरेशन है सचिन तेंदुलकर, कि हाँ, मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है। तो ये भी क्या हुआ, उन्होंने भले किसी को जाके यानी एक इंडिविजुअली किसी को हेल्प नहीं करी, पर कितने सारे लोगों को इन्हें इंस्पायर किया अपने वर्क के थ्रू। यानी आप किसी को भी कैसे भी मतलब कई लोग होते हैं, जैसे अभी कपिल शर्मा को ले ले, तो एक कॉमेडी को एक हाइट के ऊपर वो लेके गए हैं। मुझे पता नहीं आप लोग कितना देखते होंगे कि नहीं। मैं पहले बहुत देखती थी, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, तो मैं यानी अभी मैं नेचर में ज्यादा जाती हूँ। जैसे कुछ ना कुछ मेरा वही होता है कि यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, नेचर में इतना टाइम स्पेंड कर लिया, तो वो सब चलता है। पर लेकिन जब मेरे पास पहले टाइम होता था तो मैं कभी कभी देखती थी। और वैसे अगर आप उसकी लाइफ में देखोगे तो वो भी हमारे जैसा एक साधारण इंसान था। धीरे 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 करके वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता गया। उसकी क्रिएटिविटी थी लोगों को हंसाना, और यानी कुछ ना कुछ उसकी क्रिएटिविटी के थ्रू वो बहुत 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 कुछ उसने लोगों को दिया। इसे कोविड के टाइम पे भी लोगों को हंसाया, लोगों को खुश रखा। जो टाइम पे ये हंसी खुशी ही आपको मदद करती है ये सब चीजों में से बाहर लाने के लिए। आप जितना डाउन में जाते हो, डाउन हमारा जो हम पावर बुक में देखते हैं जो फीलिंग्स है चार्ट में, जितना आप नीचे की फीलिंग्स में जाते हो, इतना ही आप वो चीजों को और अट्रैक्ट करते हो। पर जब आप आगे ऊपर वाली फीलिंग्स में रहते हो, ग्रेटिट्यूड में, हंसी खुशी में रहते हो, जॉय वाली फीलिंग में रहते हो,
एक्साइटमेंट में रहते हो, पैशन में रहते हो, तब क्या होता है, आप ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट भी करते हो। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं भी है, अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, अपने आप आपकी हेल्थ धीरे 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 ठीक होने लगती है। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कोई कोई चीजें आपको टेस्ट करने के लिए भी आती है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, बस सुप्रीम के ऊपर अपना पूरा सरेंडरिंग करना होता है। हाँ, तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं किसी न किसी तरह से अपनी क्रिएटिविटी से आप लोगों को कुछ न कुछ मदद करने के लिए, कुछ न कुछ इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, जो भी है। यानी हम इतने बड़े लोगों को जब देखते तो वो हमारे तरह साधारण लोग ही होते हैं। पर वो क्या करते हैं कि जब उनको पता चला कि हाँ, ये मेरी क्रिएटिविटी है, उसको वो आगे 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 और आगे लेवल 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 अप करते जाते हैं। तो उसी तरह से हम अभी क्या कर रहे हैं, एक तो हम धीरे धीरे अभी ढूंढ रहे हैं कि हाँ, हम किस चीज में क्रिएटिव हो सकते हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं कि हम ऑलरेडी जो चीजें हमें पसंद है वो करके, हमेशा ब्लिसफुल फीलिंग्स में रह के, हमेशा खुश रह के, ग्रेटिट्यूड में रह के, तो धीरे 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 हमें भी पता चलेगा कि हाँ, हम किस चीज में अच्छे हैं, क्या चीज है हमारे अंदर जो यूनिक है और हम पूरे वर्ल्ड को दे सकते हैं, हमारी क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये भी चीज है कि हम कैसे हमारी एनर्जी को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, तो हम लोगों को भी वो एनर्जी के थ्रू मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ये भले आज इन्होंने दी है यहाँ पे, आपको मैं बोलती हूँ कि आप रोज रोज ये प्रैक्टिस करें, कब आप खुद उठ जाओगे ऊपर आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। To wave your magic hand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words, thank you, in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would then you heard the news that the person's health has been fully restored. It will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. हाँ, तो यहाँ पे भी आपको जैसे हमने मैजिकल आउटकम्स में किया, मैग्निफिसेंट आउटकम में, कि हम कोई भी चीज करने से पहले उसकी तरफ ऑलरेडी वो एनर्जी भेज देते हैं, ग्रेटिट्यूड की और फेथ की फुल एनर्जी उसमें लगाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि जो भी पर्सन, अगर आप उसकी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, जैसे अभी हम आज विनीता जी के लिए हम सब लोग करेंगे साथ में मिलके, तो हम क्या सोचेंगे, हम विजुअलाइज करेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, यहाँ पे आ रही है, हम उनको देखते हैं वीडियो में, हम हमसे हंस हंस के बात कर रही है। ये पूरा हमें विजुअलाइज करना है कि वो बात करे हमारे साथ, हमें बोल रहे कि हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ, मैं एकदम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, ये सब वो हमारे साथ बोल रहे हैं। हम ये विजुअलाइज करना है आज, और विजुअलाइज तो करना ही, हमें लिखना भी है कि मतलब ये एक्चुअली ये प्रैक्टिस में आज कुछ लिखना नहीं है वैसे, पर मैं ऐसा करती हूँ कि लिख देती हूँ कभी भी। तो लिखने से क्या होता है कि वो जो थॉट्स हमारे थे वो पूरे ऑर्गेनाइज करके हम उसको लिख देते हैं कि हाँ, ये ऐसे 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 हो गया है। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप अपना एक ऑलरेडी एक फील कर रहे हो कि हाँ, मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ कि ये चीज ऐसे ऐसे हो गई है। ओके, सो ये पूरा प्रेजेंट टेंस में ही करना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. हाँ, यानी आपको ये फील करना है कि आपको जिसके भी बारे में आप कर रहे हो, वो आपको कुछ न्यूज़ दे रहे हैं,
अगर मान लो आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ठीक नहीं है, मे बी कोविड की वजह से शायद उनकी जॉब चली गई, या कोविड की वजह से उनको बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, जो भी है, और कोई किसी और वजह से भी हुआ हो, तो कुछ भी है, आप उनके बारे में आज ये सोच के उनको अच्छी वाली फीलिंग्स भेज सकते हो, उनके बारे में एक विजुअलाइज कर सकते हो कि हाँ, उन्होंने आपको फोन किया और बताया कि देखो देखो ऐसा हो गया, ये पूरा जो मेरा फाइनेंस का था अच्छे से अभी हो गया, चालू हो गया, मेरा जो भी थे उनका जो भी सर्कल था फाइनेंशियल सर्कल, वो चालू हो गया, उनकी अगर जॉब चली गई तो उनको जॉब मिल गई, अगर उनके बिजनेस में कोई बिजनेस ठप हो गया था जो भी था, तो वापस से वो अच्छे से बिजनेस स्टार्ट हो गया। यानी जो भी है, आपको पता है आपको किसको मदद करनी है, आपको वो भी ऐसे 3 लोग लेने हैं। मान लो उन्होंने किसी अपने क्लोज वन को खो दिया है अभी रिसेंटली, कोई उनकी लाइफ में से चला गया है, तो उनके लिए भी आप कर सकते हो कि चलो चला गया है जो भी है, पर वो अभी अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी आप विजुअलाइज करके उनको ये अच्छी फीलिंग्स भेज सकते हैं। ओके, सो या लेट्स रीड फॉर दैट। If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. तो ऐसे मान लो कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो किस चीज के थ्रू गुजर रहे हैं, पर आपको इतना पता है कि कोई ना कोई टफ टाइम से गुजरे। कहीं कभी कभी लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं कि नहीं बताना चाहते, कि किसी को बता के हमारी प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, और सही है, वैसे भी किसी को बताने से कोई हमारी प्रॉब्लम हल तो होती नहीं है, पर हाँ, तो भी आपको पता है कि हाँ, किसी न किसी दौर से वो गुजर रहे हैं आप अभी, तो उसके लिए भी आप अपना मैजिक वॉन्ड यूज करके उनकी तरफ अपनी अच्छी वाली एनर्जी भेज सकते हो, और यहाँ पे आप प्रे कर सकते हो उनके अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी हैप्पीनेस रिस्टोर होने के लिए, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी था वो चला गया है और वापस अपने फाइनेंसिस में वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो सब चीजों के लिए आज आपको विजुअलाइज करना है, दैट्स इट। Okay, so let's see. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold that photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने अपने आप को विजुअलाइजेशन में ऑलरेडी इन्वॉल्व कर दिया विनीता जी के लिए, कि वो यहाँ पे आ रही है, हमारे साथ बात कर रही है, भले हम एक दूसरे को वैसे पहचानते नहीं है, ना मैं उनको कभी मिली हूँ, ना मैं वो मुझसे मिले हैं, तो भी हम यहाँ पे उनको रोज देखते थे, उनसे बातें करते थे, वो कितनी हमेशा फुल ऑफ लाइफ रहते हैं, हमेशा ही हमारे साथ बहुत ही अच्छे से बातें करते, तो मैं यहाँ पे अपने आप को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ कि हाँ, विनीता जी बिल्कुल ठीक हो गए, वे वो सेशन में आ रहे हैं, हमारे साथ वीडियो में बोल रहे हैं कि हाँ, मेरी बिल्कुल हेल्थ अच्छी हो चुकी है। तो हम जब अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं, तो हम ज्यादा वो अच्छी तरह से विजुअलाइज कर पाएंगे, ज्यादा वो फील भी कर पाएंगे। जैसे मैं भी फील कर पा रही हूँ कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब वो आए मेरे साथ बात कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने बोला चलो आज मैं पढ़ूंगी, तो वो अपनी बुक भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं आके। तो ये सब चीजें जब मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रही हूँ, तो मतलब अपने आप को मैं जब इन्वॉल्व कर रही हूँ, तो मैं ज्यादा विजुअलाइज कर सकती हूँ ये सब चीजों को। तो उसी तरह से आप सब लोगों को भी करना है,
3 पर्सन को लेके उनका फोटोग्राफ सामने रख के, या तो आप ऐसे मन में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो आपको ये इमेजिन करना है कि उनका जो भी है सॉल्व हो चुका है, और आपको उनको हंसते खेलते आपके साथ बातें करते हुए देखना है। ओके, या Shall I read? या Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, thank you, slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you finish the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. यानी ये प्रैक्टिस कुछ ज्यादा आपका टाइम नहीं लेगी। आप 1-1 मिनट के लिए ये विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसे हो चुका है, कैसे आपको वो पर्सन आपको या तो फोन कर रहा है, या अगर आपके पास कहीं वहीं पे है तो आपके आसपास ही रहता है, तो आप उसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि हाँ, आपके घर पे मिलने आए हैं, वो आपके साथ बातें कर रहे हैं, बहुत हैप्पी है, आपको बता रहे हैं कि हाँ देखो उनकी ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, या जो भी है आपको आज ये विजुअलाइज करना है। दैट्स इट, आपको कुछ लिखना नहीं है, बस 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के उनका नाम लेके आपको ये आज बोलना है और विजुअलाइज करना है। दैट्स इट। और ये तीनों पर्सन को लेके एक साथ में ही आपको करना है। ओके, You can also use you can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day, or you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. हाँ, यानी ये कैसे आती है आपके तरफ ये आपको पता भी नहीं चलेगा, पर ये जरूर आती है। जो भी हम किसी और को हम जब भी कुछ भेजते हैं, वो हमारे तरफ वापस जरूर 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 आती है बूमेरैंग की तरह। तो ये प्रैक्टिस बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को भी अंदर से इतना अच्छा फील होगा कि हाँ चलो ये मेरी एनर्जी है, जो भी सुप्रीम के साथ में जैसे जुड़ी हुई हूँ, तो मैं अपने आप को कोई अच्छी एनर्जी सेंड करने के लिए यूज भी कर रही हूँ, अपने आप की तरफ से किसी और के लिए कुछ कर रही हूँ। चलो आप अगर मान लो आप फाइनेंशियली किसी को नहीं मदद कर सकते हो, या आप जहाँ वहां पे जाके फिजिकली भी हेल्प नहीं कर सकते हो, पर एटलीस्ट आप प्रेयर्स करके उनको हेल्प कर सकते हो मैजिक वॉन्ड की तरह। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। मैं अपने फार्मेसी में जब भी जाती हूँ, मेरे आसपास और डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, जैसे फूड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये एनवायरमेंटल सर्विसेज डिपार्टमेंट है, तो एनवायरमेंटल सर्विसेज वाले पूरे जो भी हमारे हॉस्पिटल में जो साफ सफाई वगैरह होती है, ट्रैश वगैरह लेना, तो वो सब काम करते हैं। तो पूरा ही फार्मेसी यानी बेसमेंट में ही है। तो ये सब लोगों को मैं जब भी देखती हूँ, उनकी तरफ ऐसे ही अच्छी अंदर से एनर्जी भेजती हूँ कि उनके जो भी है उनके, मतलब मुझे पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर कभी-कभी किसी को देख के आपको लगता है कि हाँ, उनको शायद आपके ये पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत हो सकती है। आपको ऐसे उनको देख के लगता है, तो तुरंत आप ये भेज सकते हो कि हाँ, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ जाए, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, उनकी लाइफ में उनकी लाइफ खुशियों से भर जाए। इसी एक खाली आपको बस अपना थॉट और अपनी फीलिंग्स अच्छी वाली उनको भेजना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये बहुत ही ईज़ी होता है, आप करके देखना। बहुत ही आप अच्छा फ़ील करोगे अंदर से। आपको लगेगा कि हाँ, मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकती हूँ, मेरे भी हाथ में कुछ है। तो या
So magic practice number 20. The magic wand. Count your blessings. Take a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Choose three people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all three. If you have them, collect a photograph of each of the three people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you're receiving the news. Eyes in your hand. Say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you. For names, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 चीजें करनी है। पहले तो ऐसे 3 लोगों को ले लो जिनकी भी आप हेल्थ या हैप्पीनेस को रिस्टोर करना चाहते हो। फिर उनको उनके अगर फोटोग्राफ है तो बहुत ही अच्छी बात है, फोटोग्राफ ले लो अपने सामने में भी, अगर मोबाइल में तो स्क्रीन में ले लो। उनके सामने फोटो रख के उनके बारे में ये विजुअलाइज करना है कि उनका जो भी है फुल्ली रिस्टोर हो चुका है। और उसके बाद तुरंत जब आप विजुअलाइज कर लेते हो उनके बारे में, अच्छा मन में सोचते हो, उसके बारे में आपको अपनी आंखें बंद करनी है। फोटोग्राफ अभी भी आपके सामने है और उसके बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के उनका जो भी नाम है वो लेके आपको उनकी तरफ हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ को के लिए प्रे करना है। दैट्स इट। तो ये आज आपको ये एक बात आज को आपको मैं समझाना चाहूंगी कि हम सबको पता है, हम सब लोग प्रे करते हैं, राइट? तो हम कभी-कभी क्या करते हैं, हम प्रेयर्स में कैसा करते हैं कि रो-रो के हम भगवान से जैसे कि भीख मांगते हैं कि या हमें बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये हमें मिल जाए, या किसी और के भी लिए कभी-कभी हम ऐसे प्रे करते हैं। वो प्रेयर्स को प्रेयर्स नहीं बोलते। प्रेयर्स कैसी होती है जिसमें आपका फुल फेथ ऑलरेडी है। आपको पता ही है कि मैं अगर ये प्रे करती हूँ या करता हूँ, ये पक्का ही ये हो जाएगा। यानी जो भी सुप्रीम की मर्जी से होगा वो आपको मंजूर है। आपको वो चीज में पूरा फेथ है कि जो भी सुप्रीम की तरफ से मुझे मिलेगा या किसी और के बारे में जो भी होगा वो बहुत ही मैग्निफिसेंट होने वाला है। तो ये प्रेयर्स में हम जो प्रेयर करते हैं यूजुअली और हम यहाँ पे जो प्रेयर सीख रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी-कभी मुझे भी याद है जब मैं जैसे सजदा हमारे में करते हैं अपने मुस्लिम्स के अंदर, या हम जैसे दाऊदी बोहराज हैं, तो हमारे में जैसे सजदा करते तो हम सजदे में प्रेयर्स करते थे, पर उसमें हमारे तो भी कहीं ना कहीं पे हमें डाउट्स होते थे कि ये प्रेयर्स हमारी होगी कि नहीं। हाँ, ये भी है कि जिस चीज में हमें डाउट नहीं होता था वो चीज पक्का ही हो जाती थी, पर तो भी प्रेयर्स करने के टाइम पे हमारे माइंड के अंदर अंदर कुछ ना कुछ डाउट्स होते थे कि हम कुछ अगर प्रे कर रहे हैं तो वो प्रेयर्स कभी नहीं फुलफिल होगी। डाउट्स के साथ वो जो डाउट वाला थॉट होता है वही इतना पावरफुल होता है। यानी या तो डाउट होता है या तो फेथ होना चाहिए, दो में से कोई एक चीज पक्की होनी चाहिए। तो अगर आपको डाउट है तो वो चीज फिर नहीं होगी, दोनों चीज साथ में नहीं होते। या तो फुल फेथ होता है या तो डाउट होता है। यानी आप ये नोट करना लाइफ में, कभी भी जब भी आपको कुछ डाउट नहीं होगा, जब भी आपने प्रेयर्स की होगी वो प्रेयर्स जरूर फुलफिल हुई होगी। पर जब भी आपको मन में डाउट था कि नहीं ये पता नहीं, मतलब कभी-कभी हमें ऐसा भी होता है कि मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं, कितनी सारी नेगेटिव चीजें भी पैरेलल साथ में चलती रहती है। तो यहाँ पे आपको ये भी सीखना है कि हमें प्रेयर्स कैसी करनी है।
जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और हम उसमें वो बुक में सीखेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें भी डॉक्टर जोसेफ मुर्फी जो बात करते हैं उसमें ये बात करते हैं कि प्रेयर्स कैसे करते हैं हम, कैसे हम हमारे प्रेयर्स को यूज कर सकते हैं हमारे खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो दैट्स इट, लेट्स रीड अवर पावर बुक। सो उसको उससे मूव होने से पहले किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आज की प्रैक्टिस के बारे में? कल की प्रैक्टिस कैसी रही सबकी? एयर के बारे में। अच्छी रही। यस। ओके, सो हमने यहाँ तक पढ़ा था ये जो न्यूट ऑथर क्रिश्चियन लार्सन ने जो बोला था, तो अभी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री हैज प्रूवन। Okay. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, the arts, or technology, the names of the people who imagined the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they changed the world. हाँ, यानी जो भी लोग थे ये उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को, अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करके उन्होंने इमेजिन किया। तो कल भी जैसे हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो भी सीक्रेट ऑफ द मास्टर माइंड इज फाउंड होली इन द यूज ऑफ इमेजिनेशन। यानी हमने कल पूरा इसी बारे में पढ़ा था कि हम अभी जो भी इमेजिन, या तो हम थॉटफुली मतलब डेलिबरेटली कुछ इमेजिन करें या डेलिबरेटली नहीं करें, वही हमारी लाइफ होती है। यानी विजुअलाइजेशन का पावर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जो भी इमेजिन करते हैं वैसे ही चीजें हमारी लाइफ में आती है, या तो हम हमें पता है या नहीं पता है, पर हम कुछ ना कुछ इमेजिन कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ चीजों को। जो भी हम सोच रहे होते हैं यूजुअली हमारे माइंड में उसकी इमेजिनेशन कहीं ना कहीं पे चली रही होती है। अगर हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो वैसे ही नेगेटिव इमेजेस हमारे माइंड में चल रही होगी कुछ ना कुछ। तो सेम तरह जब आप इमेजिन करना स्टार्ट करते हो, हमें अभी पता चल गया कि हाँ, इमेजिन करने से हम हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। अभी आपको ये पता जब चल जाता है तब क्या करना है आपको अपनी लिमिटेशंस के आगे भी इमेजिन करना है। जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर ये सचिन तेंदुलकर ऐसे ही क्रिकेट खेलता रहता, उसने अगर इमेजिन नहीं कहा कि हाँ उसके हाथ में वर्ल्ड कप है, उसके हाथ में अगर वो उसने इमेजिन नहीं किया होता तो वो ये मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पहले तो हम किसी न किसी स्मॉल तरह से ही स्टार्ट करते हैं ना। कोई भी चीजें होती है तो हम जब स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते, चलो मान लो हमने कोई बिजनेस किया अभी, तो बिजनेस में हम सोचेंगे कि हाँ चलो हमारी ये पूरी सोसाइटी है जहाँ पे भी हम सिटी में जहाँ पे रहते हैं, तो हमारी इमेजिनेशन इतनी होती है कि हाँ ये मैं धंधा कर रही हूँ या कर रहा हूँ और सबकी तरफ सब मेरी ये जो सब चीजें हैं वो खरीद रहे हैं मेरे पास से। तो आप इमेजिन करोगे कि हाँ सिटी के लोग खरीद रहे हैं आपसे। अभी आपको क्या करना है, अगर आप वो मकाम पे पहुंच गए कि हाँ सिटी में बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं और ये चीजें खरीद रहे हैं, तो आप अपनी इमेजिनेशन को और ज्यादा बढ़ाओ, अपनी लिमिट्स को। अभी आप इमेजिन करोगे कि हाँ इवन दूसरे सिटी के लोगों को भी पता चल रहा है और वो भी आपके पास से ये चीजें आके खरीद रहे हैं, या तो वो ऑनलाइन खरीद रहे, जो भी है। आप अपनी लिमिटेशंस को बढ़ाते जाते हो, इमेजिनेशन को। फिर आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर व्यू देखते हो, उसमें आप देखते हो कि आसपास की सभी सिटीज के लोग आ रहे हैं आपके पास खरीदने के लिए। धीरे धीरे आप इमेजिनेशन को बढ़ाते हो कि अरे पूरी स्टेट वाले लोग मेरे ऐसे आके खरीद रहे हैं। इतनी ये चीज आप बिकॉज आप दिल से करते हो, किसी का हार्म नहीं कर रहे हो। आप जो भी चीजें बेचते हो अच्छी क्वालिटी को बेच रहे हो। जो चीज लोगों को चाहिए वैसी आप बेच रहे हो।
तो धीरे 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 करके वो चीजें ऑफ कोर्स फैलेगी, आपके इमेजिनेशन में ही पहले तो फैलेगी, और पक्का वो चीजें फिर जैसे रियल लाइफ में भी वो चीजें होने लगेगी इनविजिबल रेम्स में से, क्योंकि जो भी अगर आप इमेजिन कर सकते वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इनविजिबल रेम, आपको बस अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके साथ एडजस्ट करना है। अभी क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी वो लो वाली फ्रीक्वेंसी होगी, तो कभी कभी आप इमेजिन तो कर रहे हो पर वो चीज आपकी तरफ आ नहीं रही है, अट्रैक्ट नहीं रही है, हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइन नहीं है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाना है? हमेशा ही अच्छे मूड में रह के, अच्छे अच्छे फीलिंग्स में रह के, हमेशा खुश रह के, हमेशा जॉयफुल रह के, हमेशा एक्साइटमेंट वाले उसमें रह के आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उसके साथ अलाइन करनी होती है, सुप्रीम के साथ, यूनिवर्स के साथ। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी अलाइन हो जाएगी, जो भी आप इमेजिन करें वो आपके सामने होगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि अपनी लिमिटेशंस को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। कब वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और आपको कभी भी हाउ में तो जाना ही नहीं है। तो ये एक आज ये बहुत ही बड़ी बात हमें ये सिखा रहे हैं रोंडा बर्न ये पावर बुक के थ्रू, कि इमेजिन तो करो पर इमेजिन अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करके ज्यादा 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 करो। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Your entire life is what you have imagined it to be. Everything you don't have, every situation and circumstance of your life is what you have imagined it to be. The problem is that many people imagine the worst. They are turning the most wonderful tool against themselves. Instead of imagining the best, many people are in fear and imagine all the things that can go wrong. And surely, as they keep imagining, feeling those things happen. Whatever you give, feel, and the best and the highest you can every area of your life, because the best you imagine is the force. हाँ, यानी यहाँ पे जो भी बेस्ट आप इमेजिन करते हो वो फोर्स ऑफ लव के लिए, यूनिवर्स के लिए तो वो पीस ऑफ केक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम पूरे टाइम, हमारी पूरी लाइफ हम कुछ ना कुछ वर्स्ट इमेजिन करते रहते, कुछ ना कुछ डर में, यानी वो ऑटो पायलट पे ही होता है। कुछ पास्ट में हुआ उसको लेके सबकॉन्शियस लाएगा आपके अभी यहाँ पे, और आप उसके वर्स्ट को इमेजिन करते रहोगे, और जो चीजें आपको नहीं चाहिए वो इमेजिन करते रहोगे, यानी ये एक ऑटो पायलट पे ही चला गया है। अभी मान लो अभी मेरी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ भी है, चलो मैं मतलब लेट्स जस्ट इमेजिन कि हाँ चलो कुछ कहीं पे पेन है, तो अभी अगर मुझे ये सब चीजें नहीं पता है, पावर बुक और मैजिक बुक मैंने नहीं की है, तो मैं कुछ ना कुछ उसके बारे में वर्स्ट इमेजिन भी कर लूंगी। पर हाँ, मेरा फेथ अगर पक्का है कि हाँ मेरी तो हेल्थ अच्छी हो जाती है, मेरी हमेशा से यही कंडीशनिंग है कि अरे हाँ मेरी हेल्थ को तो मैं आराम से ठीक कर सकती हूँ अपने आप, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी पहले से खुद की एक बिलीफ सिस्टम बन चुकी है, मेरी खुद की कंडीशनिंग है। तो मैं हमेशा ऐसा ही इमेजिन करती हूँ कि हाँ मैं तो हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, सब जगह पे जा रही हूँ, ये चीजें कर रही हूँ, ये चीजें कर रही हूँ। मैं अपने आप को ऐसे कंडीशनिंग मेरी हो भी गई है कि मैं अगर मेरी हेल्थ खराब है तो मैं बैठ नहीं सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बेड में जाके आराम करूं, वो मुझसे हो ही नहीं पाता। कभी कभी मैं जब भी बीमार भी होती हूँ तब भी मैं जाके खाना बनाती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, वो बात अलग है, पर काम तो कुछ ना कुछ मैं करती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से अपनी कंडीशनिंग करती हूँ कि नहीं मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो ठीक हूँ, ये तो काम तो मैं कर सकती हूँ। यानी जो भी आपकी कंडीशनिंग होगी, जो भी आप इमेजिन करोगे, अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि हाँ मैं तो कल से तो पूरा ही काम, अगर आप मैं हाफ डे काम कर रही हूँ तो मैं कल तो पूरा दिन में अच्छे से काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर, ऐसे इमेजिन कर रही हूँ ना मैं अपनी हेल्थ के बारे में, तो वैसे ही चीज मेरे पास आएगी, क्योंकि मैं जॉयफुल हूँ। उसमें मैं कभी भी ऐसे फीलिंग्स में नहीं जाती हूँ, डर के या सैडनेस के फीलिंग में नहीं जाती हूँ कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ,
क्यों ऐसा हो जाता है मेरे साथ हमेशा ही, क्यों मैं वापस ऐसे ऐसे बीमार हो जाती हूँ। ऐसा अगर मैं सोचूंगी, यानी मैं तो ऑलरेडी मैं वर्स्ट इमेजिन कर रही हूँ अपने अंदर अंदर। फियर की फीलिंग्स ही है, कहीं ना कहीं पे मुझे डर भी हो जाता है। इतना समझ लीजिए, जिस भी चीज का आपको डर होगा वो होके ही रहेगा, पक्का ही पक्का होगा। और वैसे ही वैसे आपकी कंडीशनिंग और पक्का होती जाएगी। अगर मुझे ये डर है कि मैं पानी में जाऊंगी, डूब जाऊंगी, तो ये फियर जो मेरा होगा वो पक्का ही होता जाएगा, और उसकी वजह से मैं कभी स्विमिंग नहीं सीख पाऊंगी, अगर ये मेरी कंडीशनिंग है तो मुझे कुछ भी करके डेलिबरेटली वो कंडीशनिंग को तोड़ना है अभी। तो मैं कैसे तोड़ूंगी? अपने आप को मैं कहीं डीप वाटर्स के अंदर अपने आप को इमेजिन करूंगी कि हाँ मैं स्विम कर रही हूँ, मैं अच्छे से निकल के श्वासें भी ले रही हूँ, वापस अंदर डुबकियां लगा रही हूँ। उसमें जो स्विमिंग के डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं, जो डॉगी पेडल्स बोलते हैं, वो मैं कर रही हूँ, ये सब इमेजिन करूंगी, तो ही तो मैं वो फियर में से बाहर आ पाऊंगी। जैसे वो फ्लिप करते हैं ना पानी के अंदर, वो मैं इमेजिन कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से इधर से उधर मैं बहुत फास्ट स्विम कर सकती हूँ, वो इमेजिन कर रही हूँ। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी। अगर कोई भी चीज है, अगर आपको अभी आके वो हॉन्ट करती है, डराती है कुछ ना कुछ चीजों में, तुरंत ही आपको उसको चेंज करके जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम होगा उसको आपको इमेजिन करना है। हाँ, इनिशियली वो होना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर जैसे जैसे आप ये प्रोसेस में रहते हो, जैसे जैसे आप इमेजिन करते जाते हो, वैसे वैसे चीज वो आप कर पाओगे, पक्का कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसमें ग्रेटिट्यूड आपको बहुत बहुत ज्यादा मदद करता है। जो भी ग्रेटफुल हार्ट होता है वो अच्छी वाली फ्रीक्वेंसी में रहता है। जैसे ही अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहता है तो इमेजिनेशन भी आपकी बढ़ जाती है, जब आप अच्छे गुड फीलिंग्स में रहते हो। तो फोर्स ऑफ लव के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बिलियन डॉलर्स कमाने हैं तो फोर्स ऑफ लव के लिए वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है इनविजिबल रेम्स में। अगर वो आपका बहुत बड़ा सपना है, वो आपका बहुत बड़ा डिजायर है, तो हाँ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। आपको अपने आप को वो फ्रीक्वेंसी में अलाइन करना है, दैट्स इट, उसको आपकी लाइफ में लाने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी एनर्जी यहाँ पे स्पार्क, मतलब कितने सारे मैजिकल स्पार्क्स की तरह है। पूरा एक एनर्जी फील्ड है यहाँ पे, रोशनी ही रोशनी है हर जगह पे। यानी आप एक रोशनी का फील्ड हो और आपके ऊपर से रोशनी हर जगह पे फैल रही है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। When my family had settled in the United States, we flew our 15-year-old dog, Cabby, to be with us. One night, not long after Cabby had arrived, he managed to get out of a small gap in the fence. Our home backs into mountains, so it was far from an ideal situation. In the dark, we searched the streets and trails leading up to the mountains, but our dog was nowhere to be found. As तो my daughter and इनकी I were बेटी का, searching, हाँ ये इनकी बेटी के डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनका पेट था कैबी। तो अचानक से चला गया फेंस के अंदर से निकल के, और वो माउंटेन के पास रहते थे। यानी मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर आप माउंटेन के पास, मेरी एक फ्रेंड रहती है यहाँ पे, तो माउंटेन के पास अगर रहते तो बहुत बड़ी जगह होती है, और कहाँ वहां पे माउंटेन में से तो ऐसे ऐसे एनिमल्स भी आते हैं जो आप अगर डॉगी आपके निकल के चला गया तो वापस आने के चांसेस बहुत कम है, अगर हमारे ऐसे विजिबली हम अगर वो सोचे तो। पर हाँ, इनविजिबल रेम्स में आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये हम देखेंगे कि कैसे उनको उनका डॉग वापस मिल गया। as my daughter and I were searching, negative feelings of anguish began to increase. I knew we had to stop searching and change the way we were feeling inside immediately. The negative feelings were telling us that we are imagining the worst, and we had to change the way we were feeling quickly and imagine the best. At that point, every possible outcome could still happen, and we had to choose the outcome of having Cabby safely home with us.
by imagining and feeling that he was home. We returned home and we pretended our dog was with us. We put food in his bowl and though he were there, as though he were there, we imagine hearing the bell around Cabby's neck as he walked down our hall. We talked to him and called out his name as though he was there. My daughter went to bed imagining that her best friend of 15 years was sleeping next to her bed as he always did. तो उनका कितना, उनके डॉगी के साथ कितना उनको अटैचमेंट था, क्योंकि उसकी डॉटर के पास ये डॉगी 15 ईयर्स से उसका बेस्ट फ्रेंड की तरह रहा है। वो हमेशा उसके साथ खेलती होगी, मतलब कुछ कितना कुछ करती होगी पूरे दिन में। तो उसका ये बहुत ही मतलब उसके लिए तो ये एक इमेजिनेशन, मतलब उसके लिए तो उसका ये बेस्ट फ्रेंड था। और वो चला जाएगा तो ऑफ कोर्स आपको नेगेटिव फीलिंग्स आएगी कि अभी आप वर्स्ट को ही इमेजिन करोगे कि यार माउंटेन में है, कोई एनिमल ने उसको खा लिया, या फिर वो ऐसे ही कहीं पे खो गया, उसको पता ही नहीं है कैसे वापस आना है। वो डर गए, डॉगी भी तो डर जाएगा ना कि उसको पता ही नहीं है उसका होम कहाँ पे है, फैमिली कहाँ पे, तो कैसे आएगा। यानी वर्स्ट इमेजिन कर सकते हैं अगर हमें करना है तो। जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो वैसे ही होता है, हम हमारे नेगेटिव थिंकिंग में चले ही जाते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो वर्स्ट इमेजिन करने लगे, पर उनको पता था कि हाँ हमें ये चेंज करना होगा तो ही हम आउटकम को बदल सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने चेंज किया, वो दोनों विजुअलाइज करने लगे, वो और उनकी डॉटर, सभी घर में जितने भी लोग थे सब वो विजुअलाइज करने लगे कि डॉगी आ गया है, उसकी बेल जो उसके नेक के अंदर पहनी हुई है वो सुनाई दे रही है सबको, उसका फूड रखा हुआ है वहां पे बाउल पे और वो खा रहा है, वो उसकी डॉटर के पास उनके नेक्स्ट पे बेड के ऊपर उनके साथ सो गया है। ये सब चीजें वो इमेजिन कर रही, विजुअलाइज कर रही है अभी, और पूरे अच्छे फीलिंग्स के साथ किसी डाउट के बिना वो विजुअलाइज करती, क्योंकि उसको पता है कि यही चीज मेरे मेरे डॉगी को मेरे पास वापस ला सकती है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Early the next morning, we discovered a notice on a tree at the foot of the mountain saying that someone had found a little dog. It was Scabby. Just as we had imagined, our dog returned home safely to us. No matter what challenging situation you may find yourself in, imagine the best outcome and feel it. When you do, you will change the circumstances and you will change the situation into what you want. हाँ, यानी यहाँ पे सब ऐसा ही होता है कि हमारे साथ अगर कुछ भी होता है, मान लो हमारे बच्चे ने हमारे साथ गलत बिहेवियर कर दिया, तो उसी टाइम पे हमारे अंदर तो वही सब इमेजिनेशन, चिंता, भय सब कुछ चलता है। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे इमोशंस आ जाते हैं, तो पूरी नेगेटिविटी से भर जाता है उस टाइम पे कि यार कैसे इसने ऐसे किया, क्यों इसने ऐसा किया, क्या मेरी इसमें गलती हो गई, मेरी परवरिश में क्या गलती हो गई कि आज मुझे ये दिन देख रहे हैं, या जो भी आप हम पूरा वर्स्ट इमेजिन कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे सब एग्जांपल्स देती हूँ। तो उसी टाइम पे अगर आपको जो चाहिए वो चीज अगर आप इमेजिन करने लगते हो, तो आपको चाहिए क्या? अगर आपका बच्चा आपके साथ बैड बिहेव करता है तो आपको चाहिए क्या? कि हाँ वो बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात कर रहा है, आपकी बात को शांति से ध्यान से सुन रहा है, आपकी बातों को वो अग्री कर रहा है, हाँ, और आपके साथ एज ए टीम वो काम कर रहा है। आप दोनों इतने हंस हंस के खेल रहे हो, हंस हंस के बातें कर रहे हो हमेशा। तो ये सब आपको इमेजिन करना है, क्योंकि ये चीज है जो आपको उसके साथ चाहिए। अगर उसने खराब बिहेव किया उस टाइम पे आप रोने धोने लग गए, अंदर अंदर सैड फील करने लगे कि यार कैसी है मेरी लाइफ, कैसा है ये मेरे साथ हमेशा ऐसे बात करता है, तो ये सब चीजें ही आप अट्रैक्ट करोगे। वो इमेजिन भी आपने कर लिया अंदर अंदर, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कितना इमेजिन करते हो अंदर अंदर। पर अगर जैसे ही आपने चेंज कर लिया वो इमेजिनेशन को, वैसे तुरंत ही आप अलग फ्रीक्वेंसी में चले गए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेट्स सी कितना बाकी है ये वाले चैप्टर में। हाँ, तो ये एक्चुअली हम कल करेंगे, कितने टाइम इज इट?
हाँ ओके 20 हो चुका है। तो ये भगवत गीता में से इन्होंने ये एक कोट लिया है कि क्रिएशन इज ओनली द प्रोजेक्शन इनटू फॉर्म ऑफ दैट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी मैं अभी वही बात कर रही थी कि सब कुछ चीजें आप इमेजिन कर सकते हो जो आपकी डिजायर है वो ऑलरेडी इनविजिबल रेम्स में एग्जिस्ट करती है। ये आपको धीरे धीरे जब आप ये जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये चीजें समझ आती जाएगी। अभी आपको लगता है कि ये क्या बातें कर रही है, नहीं ऐसी कोई बातें मैं नहीं कर रही हूँ, ये सचमुच है। इनविजिबल रेल्म में सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। ये मैंने बहुत बार पढ़ा है और ये मैंने बहुत बार जैसे बहुत सारे लोगों को बात भी करते हुए देखा है, उनके खुद के एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं पे मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो आपके इनविजिबल रेल्म में सब कुछ है एग्जिस्ट, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो। बस आपको खुद अपनी फ्रीक्वेंसी को इसके साथ अलाइन करना होता है। Is I already said that. Okay, so let's move on to our heart thoughts for today. तो कल का हमारा हार्ट थॉट था माई होम इज अ पीसफुल हेवन। तो आज का भी हार्ट थॉट बहुत ही अच्छा है। आप सब लोग लिख रहे हो ना अभी जो ये दिए थे मैंने एफर्मेशंस? प्लीज बताएं Yes, क्योंकि हम यस दीदी, हाँ हाँ यस मैम एवरी टाइम। थैंक यू अच्छा आप लेकिन कह रहे थे कि 22 केवल 22 डेज के लिए लिखना है, पर अभी तो हम लोग रेगुलर लिख रहे हैं सब। नहीं, मैंने बीच में चेंज किया, मैंने बीच में भेजा था ग्रुप में हाँ कि अच्छा 21 डेज, हाँ 22 डेज के बाद मैंने भेजा था कि अभी आप हाँ ये लिखना स्टार्ट। એના 3 days થયા એ રવાના 3 days થયા લખીએ છે રોજ। ओके ओके परफेक्ट। अच्छा जैसे तीन जो था एफिनेशन डेली 3 लिखने वाला, आप 1 2 तो लिखो ही लिखो और थर्ड वाला रोज चेंज होता है जो, हाँ ये जो हार्ट थॉट हमारा है, तो ये जो सारे कल था तीनों माई ही होम अभी इज तक अ लिखते पीसफुल जाना है, हेवन। तीनों अभी तक लिखते चलना है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बस लिखते रहना है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आमिना ने यहाँ पे एक बार शेयर किया था, पता नहीं आप सबको पता है कि नहीं, आमिना ने शेयर किया था कि वो जब इनिशियली वो लिख रही थी कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, तो उसको इतना फील नहीं होता था उस टाइम पे, वो ऐसे ही लिखती जा रही थी। पर अब उसको समझ में आ रहा था कि हाँ ये तो एक्चुअल में वो अपने आप को ज्यादा ओपन ज्यादा रिसेप्टिव फील कर रही थी सभी चीजों के लिए, तो उसको अपने आप भी फीलिंग्स भी होने लगी। तो ये एफर्मेशंस लिखने से आपका बहुत सबकॉन्शियस के अंदर रीवायरिंग होगा, बहुत सारी चीजें चेंज होगी। सो प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस और लिखते जाइए, कोई भी गैप मत रखिए बीच में। ये डेडिकेशन आपका बहुत जरूरी है यहाँ पे। भले आपकी लाइफ कितनी भी बिजी है, मुझे पता है अगर आप अंदर से करते हो ऐसा, जैसे ही तुरंत आप ये एक कन्विक्शन बना लेते हो कि हाँ नहीं मुझे लिखना ही है। जैसे अगर आप स्कूल में जाते हो, अगर आपको होमवर्क मिलता है तो अगर आप होमवर्क नहीं करते तो जैसे पनिशमेंट मिलता है वहां पे, मैं ये छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, तो बच्चे होमवर्क करते हैं कि नहीं, आप उसी तरह इसको लो कि भाई ये मेरा होमवर्क है, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए है, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है कि आप ऐसे उसको छोड़ दो। ये आपकी लाइफ की चेंज करने की बातें आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया कि हाँ मेरे थॉट से ही मेरी लाइफ बनती है, मैं जो सोचता हूँ जो सोचती हूँ उसी वजह से मेरी लाइफ है जो भी है। तो आपको ये डेडिकेशन करना ही पड़ेगा, आपको ऐसे उसको होमवर्क की तरह लेना है यहाँ पे, और होमवर्क की तरह उसको रोज रोज करना है। આજે આજે મારો બહુ જ બીઝી ટાઈમ હતો, સવારમાં પ્રેયર કરવા જવાનું હતું નમાઝમાં, हाँ અને તો બી આવીને પહેલા લખ્યું પછી મેં ચા નાસ્તો કર્યો, આવીને પહેલા લખી નાખ્યું। अरे वाह, प्लीज आप सब लोगों को मम्मी से इंस्पायर होने की बहुत जरूरत है। उनका डेडिकेशन आप देखोगे, मैं आपको रियली बोलती हूँ कि कितनी डिसिप्लिन के साथ वो करते हो ये चीज को। उन्होंने देखो, आप यहाँ पे देख सकते कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो ये क्वेश्चन नहीं करते कि मैं क्यों लिखूं, क्या करूं, कि ये मेरे पास तो टाइम नहीं है, चलो आज तो छोड़ देती हूँ, ये मुझे तो ये नमाज में जाना है, ये करना है तो मैं नहीं करूंगी आज। इन्होंने नहीं छोड़ा। देखो उनका डेडिकेशन, सीरियसली हमें यहाँ पे उनसे बहुत सीखने की जरूरत है।
कि वो आके भी उन्होंने चाय नाश्ता करने से पहले उन्होंने लिखा। यानी कितना डेडिकेशन है उनका। सीरियसली हम उनसे बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। यहाँ पे इंस्पायर हो, जो भी आपको बोला गया है वो आप रेगुलरली करो, आपको बहुत फायदा है होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। मम्मी खुद मुझसे बताते हैं कि उनको कितना फायदा होता है। मम्मी आप अपना शेयर करो यहाँ पे कि आपको ये लिखने से क्या फायदा हो रहा है। मम्मी अनम्यूट करके शेयर करो कि आपको कुछ फायदा हुआ ये लिखने से। હા પેલા હું ઊંઘી નહોતી શકતી, હવે 3 કલાક બી ઊંઘું ને તો બી હું આરામથી બધો ટાઈમમાં હું કામ કરી શકું છું એમ. हाँ, અત્યારે एकदम હું રોજ एनर्जेटिक 4 फील વાગે करो। 4 સાડા 4 ઉઠી જાઉં છું તો હું બધું જ કામ રેગ્યુલર કરું છું એમ. આજે અત્યારે 2-2:30 વાગ્યા સુધી બી મેં બિઝી હતી ને તો બી તારું આ એટેન્ડ કર્યા, નહીં તો હું એટલી બી સવારની થાકી ગયેલું છે એકલું કામ કરીને કે અત્યારે તારું સેશન એટેન્ડ બી ના કરી શકું. પણ મને એમ કે ના કરવાનું એટલે કરવાનું એ સેશન તારું એટેન્ડ. चलो कर लो। એટલે હું એટેન્ડ કર્યું જ. अरे वाह! सो आप देख सकते हो कि इतनी उम्र में भी उनमें इतनी एनर्जी है, वो काम करते हैं, अपना एक माइंड सेट रखते हैं कि हाँ नहीं, ये मुझे करना है तो करना ही है। पर दीदी वो क्या बोली मम्मी समझ नहीं आया हम लोग को। ओह आई एम सो सॉरी। हाँ, वो एक्चुअली गुजराती में बोले ना। मैं हाँ आपको समझाती हूँ, उन्होंने वही बोला कि जैसे वो पहले वो नींद उनकी हो ही नहीं पाती थी, मतलब वो सो नहीं पाते थे। ये मुझे भी पता है कि बहुत टाइम से वो हमें भी जब हम फोन पे बात करते थे तो वो बोलते थे कि हाँ मुझे नींद नहीं आती, मैं जल्दी सो नहीं पाती हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, जब से ये सब चीजें कर रहे हैं वो 3 घंटे भी वो बहुत ही अच्छे से सोते हैं रात में। इतना वो फ्रेश फील करते हैं जब भी 4 बजे उठ जाते हैं। फिर इतना आज जैसे उनको नमाज में जाना था, इतना सारा काम करना था, तो भी वो 2 बजे तक फ्री होके मेरा सेशन भी अटेंड कर रहे हैं। तो वो वही बोल रहे थे कि मैं सेशन भी अटेंड करने, इतना सारा काम था तो भी मैं सेशन अटेंड करती ही करती हूँ, जो भी हो जाता है। तो वो अपने आप को जैसे उस ऐसे ही लेती है जैसे उनको सुबह-सुबह जाना था तो भी आके उन्होंने पूरा लिखा, जो भी उनको लिखने का बाकी था। तो वो वही अभी शेयर कर रहे थे कि पूरे एनर्जेटिकली वो सब मेरा काम 2 बजे तक उन्होंने किया। हाँ, क्या हुआ? किसी को यहाँ पे कुछ शेयरिंग है? हाँ, मेरा बस यही था, कन्फेस करना था, मेरा 2 दिन से छूट रहा है। आज उसी तरह वजह से कि आज ईद था ना, तो आज काफी हेक्टिक था, नहीं हो पाया क्योंकि आई हैव टू लुक आफ्टर किड्स ऑल्सो। पर्सनली उनको करना पड़ता है, नीचे जाना था थोड़ा, मैंने रात को बताया था ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो गया था, हुँ, सॉल्व हुआ, फिर वापस कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे मिडनाइट, तो हुँ। बराबर सो नहीं पाया था और उठने में लेट हो गया। ईद की नमाज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, करनी जरूरी थी, तो रह गया, लेकिन मैं अभी कर दूंगी। अभी अभी भी मैं आई हूँ तो अब जैसे वो जबीयत किया था तो सब क्लीनिंग वगैरह सब घर में है सब, तो अभी मैं हाँ, कोई करूंगी। बात नहीं। तो आमिना 2 आप दिन से मेरा छूट रहा है। इतना डेडिकेशन है तो भी बहुत है कि बस जब भी आपको भी टाइम मिलता है प्लीज़ कर लेना। मैं बोलूँगी कि अगर आप दिन में पूरा दिन बहुत हेक्टिक था, नहीं कर पाए, मे बी शायद बहुत नींद आ रही है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मन में थैंक यू बोल के ही सोना, जो भी हो जाए। सुबह उठते के साथ थैंक यू ज़रूर बोलना। नहीं, रात को तो सब ग्रेटिट्यूड करके ही सोती हूँ। पहले तो मेरा बहुत छूट जाता था, काफी, ये बोलो ना 2-3 दिन होता था, 2-3 दिन नहीं होता था, लेकिन अब तो मैजिक रॉक तो कंपलसरी, अब वो उसका अच्छा हैबिट हो गया है, हाँ, कितना सही। भी थके हुए। लेकिन हाँ, वो वैसा होता है कि मैं हाथ में लेकर सो जाती हूँ, ग्रेटिट्यूड करते करते नींद लग जाती है मेरी। यानी ये कितनी बड़ी चीज़ है। मुझे पता है आमिना भी कभी-कभी मेरे साथ बात करती थी, तो मुझे बोलती थी कि मुझे नींद नहीं आती है रात में। इज़न्ट इट आमिना? मैंने बहुत बार सुना है उनके मुँह से। अभी कैसा होता है वो मैजिक रॉक लेके हाथ में ही यस। सो जाती है। हाँ, शेयर करो आमिना। हाँ, वही अभी तो पता नहीं मुझे बराबर है या नहीं, कंप्लीट होना जरूरी है या नहीं, बस 2-4 चीजें मैं सोचती हूँ, कभी आंख में नींद लग जाती है, पता ही नहीं चलता।
नहीं, कुछ भी उसमें वो नहीं है, कोई आप सही ढंग से ही कर रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही होना चाहिए। मेरे साथ आमीना सेम चीजें होती है, मैं एक दो चीजें भी लिस्ट ही कर रही हूँ और मेरी नींद लग जाती है, पर एटलीस्ट हम ऐसा ऐसा सोचते सोचते सो गए, तो वो ही तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सबकॉन्शियस में तो वो चला गया ऑलरेडी। जैसे आपने एक भी चीज लिस्ट कर ली वहां पे कि हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, कि ये आज ये दिन में ये बात अच्छी हुई, आप सोचते सोचते ही सो गए, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। हाँ, तो इसी वजह जी, से नींद के बारे में तो सबका मैंने सुना है, कितने लोगों का मैंने पहले सुना था कि उनको नींद नहीं आती थी, मैजिक रॉक प्रैक्टिस से तो तुरंत ही नींद आ जाती है। अभी तक तो पूरे दिन का वो सोच भी नहीं पाते और उनको नींद आ जाती है। ये सभी के साथ सेम चीजें होती है। मेरी बहन भी मेरे साथ शेयर करती है तो वो भी यही बोलती है, कभी बस मैजिक रॉक हाथ में लेते ही उसको नींद आ जाती है, थोड़ा एक दो चीजें सोचने सोचते में नींद आ जाती है। पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था, पहले उनको नींद लगती नहीं थी क्योंकि इतनी सारी टेंशन चिंताएं कुछ न पहले कुछ कैसा चलती था, रहती। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, चिंता की वजह से नींद नहीं आती थी। अभी ऐसा हो गया कि ग्रेटिट्यूड, कितनी भी चिंता हो ना, ग्रेटिट्यूड करने की प्रैक्टिस की वजह से ग्रेटिट्यूड करते करते नींद आ जाती है। जैसे कल की बात है, काफी काफी टेंशन था क्योंकि एंड मोमेंट पे सब चेंज हो जाता है, तो डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, तो ऑप्शंस नहीं दिखते हैं, तो वो होता है। हालांकि मेरे खुद का नहीं था, मेरे हस्बैंड के रिलेटेड था, लेकिन आई एम वेरी मुझे उनको कुछ भी होता है तो मैं ज्यादा ये हो जाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो फिर भी मुझे नींद आ गया। अगर अदरवाइज ये होता, ये अगर प्रैक्टिस नहीं करती होती तो सिनेरियो कुछ और होता कि मैं सो ही ना पाती, हाँ, ऐसा था। तो अभी क्या है कि वरीज को असाइड करके सोना आ गया है अभी। वेरी नाइस वेरी नाइस। क्योंकि सुप्रीम के पावर धीरे धीरे अभी एक फेथ होने लगा है कि हाँ चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो आप अच्छा अच्छा सोचते हुए सो जाते हो। पहले क्या होता होगा कि आप एक तो वरी वरी वाले में सो नहीं पाते हो, फिर जब आपको नींद भी लगती होगी तो वरी वाले थॉट में ही सो गए, सबकॉन्शियस में वही रहा, फिर भी दूसरे दिन उठे तो भी इतने ही वरीज के साथ, बिल्कुल खराब मूड के साथ उठे, पता ही नहीं चलेगा, फिर पूरा दिन भी ऐसा ही जाएगा। वैसे होता था पहले। पर हाँ, अभी ये प्रैक्टिस के साथ क्या होता है कि आप अच्छा अच्छा फील करके, जो भी है दिन की पूरी चीजों को साइड में रख के आप अच्छा अच्छा फील करते हुए सो जाते हो, तो आप उठते भी वैसे ही हो कि अच्छे वाले मूड में उठते हो, जब क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में ही वो चीज चली गई। तो जब आप उठते भी हो तो अच्छे मूड में उठते हो, कुछ लगता है कि हाँ ये चीजें, ये है वो है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो भी आप धीरे 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 उसमें अपने आप को जॉयफुल सिचुएशन में लाने के लिए एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सबको आ गया है, सब ले ही आते हैं अपने आप को। हाँ, धीरे धीरे ये प्रोसेस है, पर आगे अभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे मैं लैकिंग हूँ। तो यही है। हातिम, आपको कुछ शेयर करना है मैजिक रॉक की प्रैक्टिस या कुछ भी? Nothing for now. I'll share later. Okay, no problem. Thank you. I have actually many things to share, but I'll organize everything one day and I'll share it. Okay, no problem. Okay, so let's read our heart thought. So money is energy. It is an exchange of services. It is matter and form. It has no meaning of itself except what we give it and believe about it. We have so much stuff about money, but it really is about what we believe we deserve. तो यहाँ पे पूरी गेम डिजर्विंग की है। अगर आप डिजर्व करते, आप सोचते हो कि हाँ मैं ये डिजर्व करती हूँ, अगर आप सोचते हो कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ $1 बिलियन, तो पक्का ही आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि मनी कुछ नहीं है, एक एनर्जी है। जो भी एनर्जी आप देते हो वही आपके पास आता है। तो अगर आप एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देते हो मनी को कि हाँ मेरे पास तो मनी आता ही रहता है, wherever I turn, my prosperity follows, तो ये एक एनर्जी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मनी आएगा। ये आपको बस खाली डिजर्व करते हो कि नहीं, ये आपको सोचना है।
कई लोगों को आप सोचना वो खुद कमाते नहीं होंगे, यानी तो भी उनके घर में अगर वो ऐसा सोचते कि हाँ आई डिजर्व दिस और आई डिजर्व दैट, तो उनके पास उनके जो घर की इनकम होगी उसमें इतनी बरकत होगी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो घर की जो लेडी होती है उसको वैसे भी जैसे लक्ष्मी माता भी बोलते हैं अपने इंडियन उसमें, लक्ष्मी बोलते हैं मतलब। तो ये बहुत ही ये एक बात बहुत यहाँ पे समझने की जरूरी है कि अगर आप आपके घर की लक्ष्मी हो, आप एक वुमन हो, घर का ध्यान रखते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, आपके हस्बैंड काम करके जो भी पैसे लाते हैं, अगर आप उसमें बहुत ही अच्छे से वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, उसमें बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग डाल देते हो कि हाँ, जो भी मनी आपके हस्बैंड लाते हैं, उसमें आप इतने सेटिस्फाइड हो कि हाँ, चलो इतना अगर जो भी है, जितना भी वो कमाते हैं, अगर आप उसमें ग्रेटिट्यूड डाल देते हो एज ए लक्ष्मी, जो घर की लक्ष्मी होती है उसका बोलते हैं, आप इतना अट्रैक्ट करोगे अपनी जो बरकत भी बोलते हैं हम इंडिया में, इतनी बरकत आप अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आपकी थॉट ऐसी है अपनी फैमिली के लिए। बहुत जरूरी है कि आप आपके हस्बैंड के बारे में इतना ग्रेटफुल हो कि हाँ, चलो वो जितना भी कमा के लाते हैं, अगर आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल कमाता ही नहीं है, ये तो ये करता है, ये है, वो है, ऐसा अगर आप सोचते हो, बहुत ही मतलब आपकी खुद की फैमिली के लिए वो बहुत ही लाइक क्या बोलूं, डैमेजिंग टाइप टाइप को इफेक्ट लाती है वो अपनी फैमिली के अंदर। पर जैसे ही आप जितना भी लाते हो उसमें आप सुकून फील करते हो, उसमें आप सेटिस्फाइड फील करते हो, तो उससे क्या होता है, आपके घर के अंदर लक्ष्मी आती ही आती है, बरकत हमेशा होती ही होती है, और आपको ही पता नहीं चलेगा कि कैसे आपकी इनकम भी इंक्रीज होने लगती है। मम्मी, आपको यहाँ पे कुछ शेयरिंग है? आपका हैंड रेस्ड है। शायद गलती से हो गया होगा। So my income is constantly increasing. The quickest way to increase your income is to do the mental work. What can you do to help yourself? You can either choose to attract or repel money and other forms of prosperity. Complaining never works. You have a cosmic mental bank account and you can deposit positive affirmation and believe you deserve or not. Affirm, my income is constantly increasing. I am worth prospering. तो ये आज आपको एफर्म करना है कि माई इनकम इस, तो यानी आप यहाँ पे इन्होंने बोला कि इनकम को अगर इंक्रीज करना है तो ये मेंटल वर्क ही होता है। फिजिकल वर्ल्ड में आपको कुछ इतना नहीं करने की जरूरत है। हाँ, आप एक्शन खुद लेते जाओगे। आपका आपका अगर माइंड सेट आप चेंज करते हो एफर्मेशंस करके, तो खुद आपका इनकम अपने आप वो इंक्रीज होगी। आपको बस अपने मेंटल एटीट्यूड पे खाली वर्क करना है। उसके लिए आप क्या करोगे? पॉजिटिव एफर्मेशंस। तो ये आज का बहुत ही अच्छा है। जिनको भी अभी अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज आप पहले तो अपने मनी के बारे में ग्रेटिट्यूड फील करें, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करें, बहुत ही अच्छा फील करें और उसके बारे में लिखे, और उसके बाद ये एफर्मेशंस करें, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड आई एम वर्थ प्रॉस्परिंग। ओके, सो दैट्स इट। Okay, so let's do our meditation. Okay, so और मेडिटेशन हमें हमारे थॉट्स को जैसे अलाइन करने में बहुत मदद करता है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगी कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। Okay, so let's do that.
It's time to help people customize and save. અલેફિયા હા કાલે હા. તારો વોઇસ જ નતો આવતો, બહુ સ્લોલી સંભળાતું જ નતું મેડિટેશનમાં. અચ્છા હા મેડિટેશન માઇક આગળ તારું ફેસ નહીં હોય ને તો બરાબર ક્લિયર મારે સંભળાયું નહીં. પેલા મ્યુઝિક વધારે હતું લાઉડ, એના લીધે પછી ઓછું કર્યું તો તારો વોઇસ જ ઓછો થઈ ગયો હતો એકદમ મેડિટેશનમાં. હા તો હું આજે થોડું આ કમ્પ્યુટર ને પાસે મૂક્યું છે. હા કાલે અવાજ જ નતો આવતો, બહુ ધ્યાનથી સાંભળે ને ત્યારે તારું સંભળાતું હતું મેડિટેશનમાં. અચ્છા ઓકે ચાલ બાય. તો આજે મને કહેજો સંભળાય છે કે નહીં, તો આપણે પછી એ પ્રમાણે કરીશું. આ મ્યુઝિક સંભળાય છે અત્યારે બરાબર છે? ના નથી સંભળાતું. અચ્છા હવે સંભળાય છે? गुजराती बोलती है, कोई वॉइस नहीं है. હું એકચ્યુઅલી ચેન્જ કરું છું, મ્યુઝિક ચેન્જ કરું છું. હવે સંભળાય છે? ના નો નો નો. No, there is no voice. अब दीदी યસ ઓકે. હવે જે હું બોલું છું એ સંભળાય છે? मैं जो बात कर रही हूँ सुनाई दे रहा है? વોઇસ ઓછો કર, મ્યુઝિક નો વોઇસ ઓછો કર તો તારો વોઇસ સંભળાશે. voice little slow you can do. हाँ हाँ मीता जी क्या? Music noise little slow. हाँ हाँ. Yes, now you say we can hear it. ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट. Okay, thank you. हाँ ये मैंने इसको लैपटॉप को भी थोड़ा आपने पास ले लिया है. Okay, so let's prepare ourselves for meditation. Okay, let's close our eyes. Hands on lap, facing the heavens above. Spine पूरा सीधा, straight. Now let's focus on our breathing. So let's take some deep breaths. So let's inhale gratitude. Hold. Release. Release all tension. Again, inhale gratitude. And exhale. Few more times. Let's inhale. Hold. And relax. Exhale. Inhale. And release. Now just focus on your breathing. अपनी श्वासों के ऊपर अपना ध्यान पूरा केंद्रित करें.
Okay. So let's now relax our body completely. From head to toe हमें पूरा अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स करना है. So let's take our head. हमारा जो फोरहेड है उसको पूरा अच्छे से रिलैक्स करना है. जो भी टेंशन है वो सब कुछ निकल गया. वहां पे अपना फोकस लेके जाना है और उसको ये मसल्स जो है यहाँ पे फोरहेड के ऊपर उनको पूरा रिलैक्स करना है. जैसे हम कभी कभी हमारे आईब्रोज के आसपास के मसल बहुत टेंस हो जाते हैं तो उनको पूरा रिलैक्स करना है. अपनी आंखों को पूरा रिलैक्स करो. पूरा फेशियल मसल्स को रिलैक्स करना है. पूरा रिलैक्स कर लो और अभी अपनी नेक की तरफ आगे अपना ध्यान को लेके जाओ. पूरे जो नेक के मसल है उसको रिलैक्स कर दो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर शोल्डर्स. पूरे जो हमारा शोल्डर है उनको पूरा रिलैक्स कर दो. पूरे अपने हाथों को पूरा रिलैक्स कर दो. फिंगर्स की तरफ अपना ध्यान लेके जाओ. अपना पाम पूरा उसको रिलैक्स करना है. जितने भी मसल्स है हमारे बॉडी में पूरा रिलैक्स. अभी हम हमारा जो ध्यान है उसको स्पाइन की तरफ लेके जाएंगे. पूरे स्पाइनल को जो मसल्स है उसको पूरा रिलैक्स करना है. हमारी एनर्जी और फोकस अटेंशन पूरा हमारे स्पाइन की तरफ है. पूरे हिप्स के भी मसल्स रिलैक्स हैं अभी. Now let's take our focus on our heart area. पूरा जो अपर चेस्ट का एरिया है पूरा रिलैक्स. अभी हमारे पूरे अंदर के ऑर्गन्स को भी हम रिलैक्स करेंगे. जैसे लंग्स है हमारा हृदय जो हमारा दिल है वो पूरा रिलैक्स है अभी. बीच बीच में हम हमारे सांसों के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं. अभी जो पूरा अपर बॉडी ये रिलैक्स है. Now let's move on to digestive system. तो हमारा जो स्टमक का एरिया है पूरा रिलैक्स्ड है. पूरा रिलैक्स है पेल्विक एरिया पूरा. और हमारा स्टमक हमारा पूरा डाइजेस्टिव अपर लोअर इंटेस्टाइन अपर इंटेस्टाइन सब कुछ लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा रिलैक्स्ड है. हमारी किडनीज हमारे पूरे ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड है. अभी हमारे थाइस की तरफ हमें ध्यान को लेके जाना है और पूरे थाई मसल्स को रिलैक्स करना है. अपर लोअर पूरे. Now let's move on to our knees. हमारे प्यारे प्यारे जॉइंट्स को हमें रिलैक्स करना है. अभी काफ मसल्स की तरफ मूव होना है. पूरे लेग्स के पूरे बोन्स को भी रिलैक्स करना है.
Now let's relax our calf muscles. And then let's move on to our feet. Ankle, हमारे toes, सब कुछ अच्छी तरह से relaxed है. अभी पूरे बॉडी में आपको पूरी बॉडी को हेड से फीट तक स्कैन करके देखना है कि पूरा बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो गया है. आपका मन भी बहुत शांत है, बहुत ही खुशी फील कर रहा है. Now let's one more time focus on our heart. कितनी सारी ब्लेसिंग्स है हमारी लाइफ में. हम दिल से जो मांगते हैं हमें मिलता है. जो भी हम प्रे करते हैं वो सच हो जाती है. Because now we are magical beings. Yes, we are. हम हमारी शुक्राना की मदद से, हमारे ग्रेटिट्यूड की पावर से क्या नहीं कर सकते. We are the winners. We can do everything and anything we put our mind to. Our income is constantly increasing and we are worth having more and more. I deserve the best. We deserve the best. I'm fully and healthy and energetic. मेरी बॉडी हमेशा मेरा साथ देती है. कुछ भी अगर है मेरी बॉडी में तो हमेशा अपने आप ही ठीक कर लेती है. और मुझे इतनी वाइटलिटी और इतनी एनर्जी के साथ भर देती है. Okay, let's rub our palms together and invite the divine energy. Let's bless our conscious, subconscious mind, our forehead, hair, eyes, cheeks, face, mouth, lips, tongue, nose, ears, पूरा नेक एरिया. सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आपका ये सभी चीजें इतनी अच्छी तरह से मुझे काम मेरे अंदर काम करती है. सभी चीजें के लिए धन्यवाद. अभी अपनी ब्लेसिंग को नेक की तरफ, शोल्डर्स, हैंड्स, पूरे हाथों में अपनी ब्लेसिंग्स को ले जाए और पूरे स्पाइन को पूरा टच करके, हिप्स को टच करके सबको थैंक यू बोले. अभी पूरा अपर बॉडी, चेस्ट एरिया में, हार्ट के ऊपर थोड़ा अपना हाथ रख के देखें आपकी हार्ट बीट्स क्या है, उसको ऑब्जर्व करें. Okay, now let's move on to our digestive system, reproductive organs, our pancreas, kidneys, liver, gallbladder, excretory organs and thighs, knees, calves, feet, sole of the feet. Now let's thank our trillions of cells
in all the organs in our body. Our skin, tissues, fibers, muscles. Thank you, thank you, thank you. अपनी धरती माता को थैंक्स करते हैं जिनकी वजह से हम हैं अभी यहाँ पे। हमारे 5 एलिमेंट्स को थैंक करते हैं। सूरज है, फायर एलिमेंट है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो वाटर एलिमेंट है हमारे बॉडी के अंदर और हमारे बाहर भी, पानी के लिए धन्यवाद। धरती माता के लिए धन्यवाद। जो पूरा जो स्पेस है, स्काई है, उसके लिए धन्यवाद। और ये हमारी जो मैजिकल एयर है जिसको हम पूरा टाइम ब्रीथ करते हैं अपने अंदर, पूरे ट्रीज को धन्यवाद जो हमें ये ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना हमारा लाइफ संभव ही नहीं थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay, thank you so much for joining in and see you all tomorrow. Love, light and abundance to all of you. Same to you, Olivia. Thank you so much for giving your precious time. Yeah, Hatin very well said that giving time is a big precious thing in the life. And Thank that's you, what you Olivia. give. Thank you. That's what you My give pleasure. for us. Thank you, thank you. Thank you, Amina, for appreciating. And thank you so much for believing in me and trusting me for your things. Okay, thank you so much. Love, life and abundance Thank to you. all of you. Same to you. Bye. Bye. Have a great day. Thank you, you too.